Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Minerals and Power Resources, and under this chapter we were doing power resources. As we have seen, there are broadly two types of power resources, the conventional resources and the non-conventional resources. Conventional resources are those resources which are in use for a very long time, है ना. Like we have seen the examples, also we have discussed in detail also about the firewood and the fossil fuel like coal. We have discussed about coal, है ना. फायरवुड के बारे में उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देखा था. देन कोल के बारे में भी, जिसको बरीड सनसाइन भी कहते हैं, इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने कंसिडर किया था, है ना. और अब हम लोग थर्ड जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, एंड दैट इज पेट्रोलियम. ओके, कन्वेंशनल source of energy. First we have discussed about firewood, then second is about this coal. It is a part of fossil fuel. Fossil fuel का एक type है. And then now today we will discuss petroleum about. So petrol is we all are aware of the importance of petroleum and its petrol and its products, है ना. We cannot think of our life without the petrol, है ना. And like whatever we do, we need petrol for the purpose of transportation. When we move from one place to another, we need any kind of means of transport, and all these run by the petrol only, है ना. And what we find that petroleum is found between the layers of rocks, है ना. रॉक्स का जो लेयर्स होता है उसके बीच में पेट्रोलियम हमें मिलता है. And it is drilled from oil fields which is located in off source and coastal areas. Mostly नहीं, पेट्रोलियम हमें वहीं से मिलता है. ये ऑफ सोर्स जो होते हैं और जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर बिल्कुल नीचे में वो होता है, ड्रिल करके इसको निकाला जाता है. और वहाँ से जब निकाला जाता है पेट्रोलियम को, तो फिर इसको रिफाइनरी में भेजा जाता है रिफाइन के लिए. जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको हटाने के लिए. जो ऑयल हमें डायरेक्टली ज़मीन के अंदर से मिल रहा है उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल, हाँ, है ना. क्रूड ऑयल उसको कहते हैं. और फिर इस क्रूड ऑयल को जो डिफरेंट ऑयल रिफाइनरीज होते हैं वहाँ पर भेजा जाता है ताकि इसमें जो इम्प्योरिटी है वो सारी इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाए, है ना. और जब वहाँ पर इससे कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, लाइक डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, ल्यूब्रिकेंट्स. ऑल दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, है ना. पेट्रोलियम से क्या क्या आता है, क्या क्या प्रोड्यूस होता है. पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, lubricants, है ना. And what we find that petroleum and its derivatives, जो भी चीज़ें हम इससे पा रहे हैं ये सारी, इसको हम क्या कहते हैं. दिस इज नोन एज ब्लैक गोल्ड. ब्लैक गोल्ड. अभी हमने कोल के बारे में एक जो टर्म देखा था वो क्या था, बरीड सनसाइन. अब ये जो पेट्रोलियम है इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है ब्लैक गोल्ड.
black because it is black in color and gold because of its utility. ये जितना हमारे लिए यूजफुल है इस वजह से इसको हम गोल्ड कह रहे हैं, है ना. And we see the countries which produce petroleum are the countries like Iran, Iraq, Saudi Arabia, Qatar. These are the 4 countries and they all are situated in the Middle East, जिसको हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं. अगर पूरे वर्ल्ड के मैप को देखें तो ये जो 4 कंट्री के हम नाम ले रहे हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर. These are the countries you will see in the world map. They are located in West Asia. Okay, and other than these countries, there are other producers as well. Like USA is also a petroleum producing country. Then Russia, Venezuela, Algeria. Okay, USA, Russia, Venezuela and Algeria. So these are the oil producing countries. And if we see in India, from where this oil is produced, it is Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai, and then deltas of Krishna and Godavari river. So first of all, these are the major producers. Okay, these are the major producers: Iran, Iraq, Saudi Arabia, Qatar, and these are the other producers. And विदिन इंडिया के अंदर हमारा कंट्री बहुत कम हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है पेट्रोलियम का. जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है. दैट इज़ वाई वी नीड टू इम्पोर्ट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना. तो अगर हम देखिए विद इन इंडिया कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो विद इन इंडिया इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉम्बे हाई विच इज़ इन मुंबई, है ना. बॉम्बे हाई, देन दिग्बोई विच इज़ इन असम. बॉम्बे हाई कहाँ है? मुंबई में है. देन दिग्बोई इज इन असम. ओके, एंड डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. Okay, so now we will see what are the advantages and what are the disadvantages of this पेट्रोलियम, है ना. पेट्रोलियम से हमें क्या एडवांटेज है? अगर देखा जाए तो इसको ट्रांसपोर्टेशन इसका आसान होता है. टैंकर से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना. और दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. लाइक हमने देखा ल्यूब्रिकेंट्स, प्लास्टिक, ये सारा कुछ इसी से प्रोड्यूस होता है. तो जो भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. बट दीज आर द एडवांटेजेस. what we find is that they have some disadvantages also, like what we see that first of all this resource is लिमिटेड. एंड जिस तरीके से इसका यूज़ हो रहा है आगे चल के हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रही है. देन जब ये बर्न होता है तो
कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है ना। पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है, और कई बार गैस लीकेज हो जाता है, ऑयल स्पिलेज हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज। और कई बार बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन कॉज्ड बाय पेट्रोलियम, एसिड रेन ऑल्सो अकर्स, है ना। एसिड रेन होता है जो कि बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। तो इस तरह से हम अगर ये भी देखें कि जो ये जैसा हमने देखा ऑफशोर में, कोस्टल एरियाज़ में बहुत नीचे मिलता है, तो इसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स अफेयर होता है। Okay, so this is all about petroleum, and now we will switch to natural gas. Natural gas is also found with petroleum deposit. जहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है वहीं पर नेचुरल गैस भी मिलता है। जब क्रूड ऑयल को सरफेस पे लाया जाता है तो उसी समय इसके साथ साथ नेचुरल गैस भी रिलीज होती है। ठीक है। सो नेचुरल गैस जो है वो जब क्रूड ऑयल की निकलता है तो उसके साथ ही वो रिलीज होती है, और इसको भी कई तरह से इसका यूज़ होता है। लाइक हम इसको डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं दिस नेचुरल गैस के, दे आर रसिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड्स। ठीक है। द मेजर प्रोड्यूसर्स आर Russia, Netherlands, then Norway and UK. And if we see within India where this natural gas is produced, it is in Jaisalmer, Krishna Godavari Delta, Tripura and some areas offshore in Mumbai. These have natural gas resources. Okay, so in India, within India it's Jaisalmer, then Krishna Godavari Delta, Tripura, and some areas offshore in Mumbai. Okay, and we see that these natural gases, they have also some advantages and some disadvantages. Like first of all, we will see the advantages. What we find that these natural gas are they are easy to transport. जैसे कि हमने देखा पेट्रोल भी जो ऑयल होता है उसको टैंकर से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इजीली हो जाता है, बल्कि नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें, नेचुरल गैस को देखें, तो इनको पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ना। और ये ऑयल से ज़्यादा क्लीन होता है। नेचुरल गैस जो होता है इससे कंपैरेटिवली अगर देखें तो कम पॉल्यूशन होता है। ऑयल की कंपैरिजन में, कोल के कंपैरिजन में, कोल के बर्न करने पर जितना CO2 जाता है, ऑयल के बर्न होने पर जितना CO2
रिलीज होता है, उससे काफ़ी कम CO2 रिलीज होता है जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, और ये चीप भी पड़ता है, इट इज़ चीपर एज वेल. सो दीज आर द एडवांटेजेस, बट इट हैज़ ऑल्सो डिसएडवांटेज. सबसे पहली तो वही हो गई कि पॉल्यूशन करता है एनवायरनमेंट को, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती, कम होती है बट होती है. सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और फिर वही इसका भी सेम होगा, जो रिजर्व है वो लिमिटेड है, तो एग्जॉस्ट होने का ये है, ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम कैसे क्या करेंगे, है ना. सो अगर हम देखें तो कंजम्पशन जो है फॉसिल फ्यूल का वो बहुत ज़्यादा है. पहले बहुत सालों से, पीछे कई सालों से, सदियों से हम इन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, लाइक कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, और इस कारण आज के समय में अगर हम देखें तो इनका जो रिज़र्व है वो बहुत ही कम हो गया है ना. तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम तो ये है कि इनका जो रिज़र्व है वो घटता जा रहा है, तो फिर आगे कैसे हम क्या करेंगे. दूसरी चीज़ जो जब ये बर्न होते हैं ये फ्यूल, जैसा कि हमने आपको कहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, सल्फर रिलीज होता है, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा आज के समय का मेजर कंसर्न है, बिकॉज हमारे एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल के लिए ये चीज़ें अब खतरा बन चुकी हैं, है ना. और अगर इस फॉसिल फ्यूल के कुछ का जो बर्न होना है, अगर वो अनचेक्ड रह जाता है, उस पर अगर हम रोक नहीं लगाते हैं, तो ये वही हो जाएगा कि जैसे एक ड्रिपिंग टैप है, ड्रिप कर रहा है, उस टैप से पानी ड्रिप कर रहा है, उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो अगर टैंक है, ठीक है, टैंक में टैप लगा हुआ है, उस टैप से पानी ड्रिप कर रहा है, और टैंक में पानी लिमिटेड है, ड्रिप करते 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 क्या हो रहा है, टैंक का पानी खत्म होता जा रहा है, बट उसमें पानी आ नहीं रहा है, तो एक दिन क्या होगा, पूरी तरह से टैंक खाली होगा. तो द सिमिलर कंडीशन वी आर गोइंग टू फेस विद दीज फॉसिल फ्यूल. हम यूज़ करते जा रहे हैं और उसमें रिप्लेनिश हो नहीं रहा है वो, बिकॉज इट इज़ नॉट रिप्लेनिशेबल, है ना. तो एक समय आएगा कि बहुत ज़्यादा वो उसकी कमी हो जाएगी, है ना. तो इसलिए अब हमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर ध्यान दें, न कि कन्वेंशनल. जो कन्वेंशनल है उससे ज़्यादा हमारे इस बात की ज़रूरत होती है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ध्यान दें. अभी कन्वेंशनल के अंदर ही आपका एक और चौथा आ रहा है. हमने डिस्कस किया कोल को, हमने डिस्कस किया पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइडल पावर. as we have I told you, the power which is generated from coal is known as a thermal power, है ना, उसको हम थर्मल पावर कहते हैं. और यहाँ पर जो पावर जनरेट, अभी हम जिस पावर की बात करने जा रहे हैं, दैट इज हाइडल पावर. अब इस हाइडल पावर में थोड़ी सी इसके साथ चीज़ें हैं जो आपको समझना है. इसको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रखते. इसको लेकर कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न आता है और वो इसको नॉन कन्वेंशनल में रख देते हैं, बट हाइडल पावर जो है वो नॉन कन्वेंशनल नहीं है, इट्स कन्वेंशनल. व्हाट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? the sources of energy which we are using from a very very long time, है ना. तो उसको हम कन्वेंशनल कहते हैं, जिसको हम बहुत दिनों से यूज़ करते आ रहे हैं. तो हाइडल पावर इस सेंस में कन्वेंशनल है ना. बट हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि हाइडल पावर को क्यों कभी कभी इस तरह का कंफ्यूजन आता है, जिसमें कि हम हाइडल पावर को नॉन कन्वेंशनल में रखते हैं. बिकॉज हाइडल पावर जो जनरेट हो रहा है वो वाटर से जनरेट हो रहा है, पावर जनरेटेड फ्रॉम वाटर, मूविंग वाटर. ठीक है, जो पावर जनरेट होता है मूविंग वाटर से, उसी को हम हाइडल पावर कहते हैं. अब जो वाटर से जनरेट हो रहा है, रिवर से जो पावर जनरेट हो रहा है, वो क्या होता है, रिवर के में वाटर जो है वो अनलिमिटेड है ना. हर समय हर साल वो जो पेरेनियल रिवर्स हैं उन्हीं पे बनते हैं डैम्स. तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम अभी देख रहे हैं हाइडल पावर, ये हमारा लिमिटेड में नहीं आता है.
This is the reason why there is confusion regarding its category. Many times it is thought that this hydropower belongs to non-conventional source. No, it's conventional. Only thing is that this is not an exhaustible source of energy. ये exhaustible नहीं है कि पूरी तरह खत्म होने वाला नहीं. This is the difference. Okay. And now we see कि रेन वाटर जो होता है, रिवर वाटर, इसको कैसे हम इससे पावर जनरेट करते हैं. इसको रिजर्वॉयर, डैम, मेन जो इसके लिए जो चीज़, जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड डैम, है ना. अब डैम में क्या होता है, डैम के अंदर भी और सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. लाइक रिजर्वॉयर बनता है ना. रिजर्वॉयर में पानी को जमा करके रखा जाता है. जो पानी इधर अप स्ट्रीम से आ रही होती है, रिजर्वॉयर में पानी को जमा करके रखा जाता है. फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से पानी को बहुत ऊपर से नीचे गिराया जाता है. इस तरह के स्ट्रक्चर आपने देखा होगा. अगर कहीं भी डैम आप गए हो तो पानी को ऊपर से, काफ़ी ऊपर से नीचे गिराया जाता है. तो पानी के फोर्स से क्या होता है, नीचे में टरबाइन लगा होता है ना. नीचे जहाँ यहाँ पर टरबाइन लगा होता है, और जब पानी इस टरबाइन पे पड़ता है तो टरबाइन मूव करता है, एंड विद द मूवमेंट ऑफ टरबाइन पावर जनरेट होता है ना. तो इस तरह से जो पावर है वो जनरेट होता है. इसी को हम लोग हाइडल पावर कहते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. ठीक है, ये आपका रिजर्वॉयर है. ये रिवर है, आप स्ट्रीम से आ रही है, और ये आपका मेन जो डैम का जो स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से पानी नीचे जा रही है, नीचे में रिजर्वॉयर है, ये टरबाइन है. ठीक है, इस तरह से पावर प्रोड्यूस हो रहा है. इसको हम हाइडल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. ठीक है, हाइडल पावर और हाइड्रो hydroelectricity. ठीक है, and now we see that the water discharged after this generation of electricity का जनरेशन हो गया. अब आगे वाटर डिस्चार्ज हो जाएगी, वाटर का काम हो गया, हाइडल पावर जनरेट हो गया. नाउ दिस वाटर विल बी यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पस, है ना. उससे इरिगेशन हो जाता है खेतों में. तो अगर हम देखें आज के समय में पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका 1/4 जो है वो इसी हाइडल पावर से होता है. 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर, है ना. और जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है हाइडल पावर के वो हैं पूरी दुनिया में पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना. दीज आर द 4 कंट्री विच आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर. Major producers of hydroelectricity is China, Paraguay, Paraguay, Norway, Brazil and China. और अगर अपनी कंट्री में हम देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं. भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो कि जिससे कि पावर जनरेट होता है, हाइडल पावर जनरेट होता है. जहाँ पर आपके बुक में ये बना हुआ है, यू कैन सी वाटर रिजर्वॉयर है जैसे हमने बनाया था. रिजर्वॉयर में वाटर जमा हो जाता है, फिर वहाँ से पानी को छोड़ा जाता है. नीचे टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन पानी के स्पीड से टरबाइन जो है वो मूव करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक है, उसके बाद पानी को छोड़ दिया जाता है. एंड दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर irrigation. Okay, so this we have done up to the conventional source of energy. Okay, and now one more thing is there.
हाइडल पावर जो हमने अभी जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो ये है कि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, इट डज़ नॉट कॉज पॉल्यूशन, और इससे इरिगेशन में भी हेल्प मिलता है, फ्लड को भी रोकने में हेल्प मिलता है, फिशिंग भी होती है रिजर्वायर में, है ना। और ये चीप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हमारे लिए चीप होती है ना। तो ये इसका एडवांटेज है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज हम यही कहेंगे कि बाय मेकिंग दीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एक्चुअली वी आर प्लेइंग विद द नेचर, है ना। ये नेचर के साथ अगर हम देखें तो हम खेल कर रहे हैं, और इसका ये नतीजा होता है कि कई बार नदी के कोर्स को चेंज करना पड़ता है, रास्ते में आने वाले फॉरेस्ट की कटाई करनी पड़ती है, बहुत ही मेगा कंस्ट्रक्शंस होते हैं, और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है ना। और कई बार इसके कारण फ्लड भी आ जाता है, पानी ज़्यादा आ गया रिजर्वायर में तो पानी छोड़ना पड़ जाता है, और जब इस तरह से पानी अचानक से छोड़ा जाता है तो इट कॉजेज फ्लैश फ्लड। और जितना ज़्यादा डैम्स जैसी चीज़ों का जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा उतना डिफॉरेस्टेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन होता है। जैसे सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी पर बना, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ लोगों ने, ट्राइबल पीपल ने, जिसको कि मेधा पाटकर, आपने जरूर नाम सुना होगा, मेधा पाटकर ने इस आंदोलन को, नर्मदा बचाओ आंदोलन वो था, को उन्होंने लीड किया था। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं, और हम कह सकते हैं कि नेचर जो है उसको, उसके साथ अगर हम ज़्यादा इंटरफेरेंस करेंगे तो इसका जो खामियाजा होगा वो हमें ही भुगतना पड़ेगा, और हो भी रहा है। इन दिनों में जिस तरह से फ्लड्स आ रहे हैं खास करके उत्तरांचल में, वो इसी बात को इंडिकेट करते हैं कि जो इतने सारे डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है दैट इज़ गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रियल इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमन काइंड। हाँ, पावर जनरेट हो गया, इंडस्ट्री को पावर मिल रहा है, इरिगेशन की फैसिलिटी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ही ये खतरा बन करके खड़ा हो गया है हमारे सामने। Okay, so this is all we have done about the conventional source of energy, and now we will be doing the non-conventional source of energy. Non-conventional source of energy में वही energy sources आते हैं जो कि non-conventional है, यानी कि जिनकी अभी नई starting हुई है, ठीक है। These are called non-conventional source of energy. Okay, non-conventional के अंदर हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो non-conventional source of energy हैं वो इनएग्जॉस्टिबल है, जिनका एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, जिनकी जो क्वांटिटी है वो हमारे सामने अनलिमिटेड होती है ना। तो और ये एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट करती है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हम अपनी सर्वाइवल चाहते हैं कि ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करें, है ना, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम पॉल्यूशन को रोकें, है ना। और ये पॉल्यूशन रोकने में ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आज के समय में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारी यूज़ हो रही है, ये सभी रीन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टिबल है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर दिस हेडिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अबाउट सोलर एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग अभी करेंगे। सो व्हाट इज सोलर एनर्जी? सन के बारे में हम लोग सभी जानते, वी ऑल नो दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अस, है ना। सोलर एनर्जी जो है वो इसी सन से जो एनर्जी मिलती है उसको ही हम इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए जो जनरेट करते हैं उससे, सन की एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, है ना। सन का रे अर्थ पे पड़ता है और फिर अर्थ उसको रिलीज करती है, वी नो दिस, है ना। अब सोलर सेल्स होती हैं, ठीक है, और इन सोलर सेल्स पे जब सन का रे पड़ता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अगर इस तरह के सोलर सेल्स को, बहुत सारे सोलर सेल्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाएगा तो क्या होगा, सोलर पैनल्स जनरेट होते हैं।
सोलर पैनल बन जाते हैं। और ये जो सोलर पैनल होते हैं इनसे पावर जनरेट होता है, जिसको हम हीटिंग के पर्पज़ से, लाइटिंग के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हमारे लिए बहुत ही ये एक अच्छा ऑप्शन है, खास करके उन कंट्रीज़ में जो ट्रॉपिकल हैं, है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ते हैं, जहाँ पर कि डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमें इसको ज़रूर इसको टैप करना बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सो हम लोग इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अदर जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।